Anyways, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we talk about what's called as a merge. We have to do actually merge sort we have done, right? We have to do what's called as a heap sort. Now heap sort जो आपका है, ठीक है ना? जो आपका heap sort है, firstly we need to understand what is heap. When we understand what is heap, only then we can say what is heap sort. Let's get some maslas. The pen going. What is an heap? But before we understand heap, we need to understand what is tree, and that too what is a binary tree, and that too what is a complete binary tree. Okay? One is full binary tree, one is complete binary tree. We need to understand what is the binary tree firstly. A tree firstly. A tree means something which is having some kind of a root, and then there are sub branches, the children. Okay. This is the parent is the root here, which is the first node. This could be the first data, first block of an array, first element of an array, or the first block of a linked list, whatever it is. And then there are sub uh, trees in it, or there is a left child and the right child, or we could have definitely the other children also. There could be any many children. It's not necessary that you have only two children, but if you have two children, then the binary tree will come into place. But you could have any many children. That will be called an array tree. An array tree. N can be anything. 3 for example, here it could be 4, it can be 5, no matter what, right? But there should not be any path between the nodes. If there is a path between the nodes, it will become a graph. So we don't have to have a cycle. It should be acyclic. It should be a cyclic graph. A graph, this is also a graph, but it is acyclic. Means it doesn't have any cycle in it. Now, but if we limit the number of children to 2 only, if we limit number of children 2 only, it will become a binary tree. That means at the max, it can have either it can have a 0 child, it can have 1 child, or it can have maximum 2 child. So that means if I have a single child, it's also binary. If we have a single node with a single child, it's also binary. And if we have a two nodes, children here, it's also binary. But if we have a 3, it is not a binary. You understand? We'll take tree in detail later. But we need to understand what is complete binary. One is a full binary is that we have every parent has a 2 children. Only leaf nodes, which are having no children, okay, which are single without any child, they are not parent of anybody, they are exempted, but rest of them should have a 2 child. If it is so, that means all the levels will be filled. So it is having 2. If this guy is having 2, this guy also should have a 2, and leaves should be on the same level. That means it can't be like this, that we are here, say for example it has 2 child, this one is also 2 child. Now is this a binary tree? Yes, question. Binary tree. Yes, sir. It is a binary tree because binary tree is saying that every parent has a 2 children. Now this one has 2 kids, this guy has 2 kids, right? Only the leaf nodes cannot have any nodes. That is all right. Because kunjashna is end karun, we have to end somewhere, na? So therefore leaf nodes can't have. But there is a problem in it, that leaf are not on the same level. 2 leaves are here and 1 leaf is here. They are not on the same level. So it's not a complete binary tree. So complete binary tree says that, firstly the full binary tree says that leaves have to be on the same level and it is to be full. Every internal node has 2 kids, 2 children.
every internal nodes, because these are the leaf nodes. Only leaf nodes are exempted to have any kids, but any other than the leaf nodes, you see the leaf nodes are on the same level, and internal nodes, whatever the nodes are, they have to have 2 children. Okay, now the complete binary tree and the full binary tree is the difference is that full binary tree says that you start filling your tree. Say for you start filling your tree like this. Now you start filling this and you start filling this. Now leaves are on the same level, right? But this has missing kid here, and this guy has missing kid here. The complete binary tree says if you have to start filling from left to right. Don't start from writing have some empty spaces on the left. You can have empty space on the right, but no empty spaces in the left side. And if you want to fill this tree as a complete binary tree, then it will go like this. Then it starts filling up this. Then the next node will start here. These can have no nodes, no 2 nodes. Okay, you can skip here. You cannot skip. You have to fill the level first. Say for example, you have to fill 10 nodes. You start filling from 1, go 1 node, 2 node, 3 node, 4 node. Start from filling from left to right. Okay, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है. अब ये वाले आपने नहीं भरे, वो चल सकता है. This is called as a complete binary tree. ठीक हो गया? बात समझ आई? What is complete binary tree? We will come back to it in fact later on. आपको ये समझ आया? मुझे बताएं आप. Yes sir, yes sir. ठीक है, तो पहली शर्त हीप के लिए यही है. अगर आपको हीप बनाना है, हीप की जो फर्स्ट कंडीशन उसका हीप का है, दैट इज इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. इट हैज़ टू बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज जो पेरेंट है, जो क्या है, अब हीप के 2 होते हैं, मैक्स हीप या मिन हीप. मैक्स हीप में क्या जो पेरेंट होता है ना, वो बड़ा होता है देन द चिल्ड्रन. अगर मैक्स हीप है, ठीक है, अगर ये क्या है, अगर ये मैक्स हीप है. अगर मिन हीप है, उसमें जो पेरेंट होता है आपका वो छोटा होता है देन चिल्ड्रन. ठीक है, सो 2 कंडीशंस हमारे पास है यहाँ पे. एक हीप में क्या है, इट्स अ ट्री बेसिकली, लेकिन इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है, तो उसकी पहली स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है कि जो नोड होगा, पेरेंट जो होगा, इट विल बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू चाइल्ड, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू चिल्ड्रन, व्हाट एवर द चिल्ड्रन, बोथ चिल्ड्रन इट हैज़. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, ये 20 है. ठीक है, इसके साइड में फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा 50, और इसके साइड में मैंने रखा 13, और इसके साइड में रखा मैंने 40, इसके यहाँ पे रखा 45, इसके यहाँ पे रखा 12, और यहाँ पे रखा 11. इज दिस अ मैक्स हीप? नहीं सर, इट्स अ मिन हीप. इट्स नॉट इवन अ मिन हीप, इट्स नॉट अ मैक्स हीप. व्हाई? बिकॉज जो ये वाला बंदा है ना, पेरेंट शुड बी बिगर देन द चिल्ड्रन. दैट मीन्स कि जो ये रूट है, ये नोड है ना, ये ट्री है ना, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा दैट हैज़ टू बी ऑन द टॉप. तो अगर आप देखोगे 20 का बच्चे कौन है, द लेफ्ट चाइल्ड 20 इज 50. इट शुड बी ग्रेटर देन 50, लेकिन ये 20 है, छोटा है. अब मिनी हीप हो सकता था. मिनी हीप में कहते हैं कि जो पेरेंट है वो छोटा होना चाहिए अपने बच्चों से, है ना. 20 छोटा था 50 से, लेकिन 20 छोटा तो नहीं है ना 13 से. तो ये ना ही मैक्स हीप है ना मिन हीप है. अगर मिन हीप होता तो यहाँ पे फर्ज कीजिए 10 है, 10 is less than 50, 10 is also less than 13, so this is a min heap. ठीक है, मैक्स हीप जो आपका है, उसमें जो बंदा आपका है, पेरेंट अगर है, उसके लेफ्ट में उससे छोटा होना चाहिए. फ़र्ज़ कीजिए 11 है, उसके राइट में इससे छोटा होना चाहिए, फ़र्ज़ कीजिए 15 है. ठीक है, अब 11 के लेफ्ट में या राइट में जो होगा ना,
वो 11 से छोटे ही होने चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 8 है, इट डजेंट मैटर कि आपने 8 यहाँ लिखा, 10 जैसे यहाँ पे छोटा था, 20 का छोटा 11 है, यहाँ पे 15 है, लेकिन 11 का यहाँ 10 15। लेकिन एक शर्त है कि जो पेरेंट है वो अपने 2 बच्चों के से बड़ा होना चाहिए अगर मैक्स हीप है। तो जैसे 20 आपका पेरेंट है, 20 क्या है, इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 11 विच इज़ लेसर देन 20। इसका राइट चाइल्ड कौन है, 15 विच इज़ लेसर देन 20। ओके परफेक्ट। अच्छा 11 का छोटा कौन है, 11 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 10 विच इज़ लेस देन 11। परफेक्ट। 8 विच इज़ लेस देन 11। परफेक्ट। और ये आपका हो गया मैक्स हीप। क्या हो गया, अब अगर मैं 12 लूँगा, मैं लूँगा 12 मगर यहाँ से, सो क्या ये मैक्स हीप है, क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 12। क्या ये मैक्स हीप है? यस सर। नो इट्स नॉट। वाई? बिकॉज इट्स नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री का मसला ये है कि मैंने कहा ना पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। इट हैज़ टू बी कंप्लीट बाइनरी ट्री फर्स्ट बिफोर इट कैन डू द मैक्स हीप और मिन हीप। फर्स्ट इट हैज़ टू बी कंप्लीट बाइनरी ट्री। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री सेज कि अगर आपको छोड़ने हैं ना, वो राइट साइड छोड़ो। जब बढ़ते आओगे तो लेफ्ट साइड बढ़ते आओ, यानी कि आपने 20 भरा, उसके बाद आपने क्या भरा, 11 भरा, उसके बाद आपने 15 भरा, उसके बाद आपने 10 इसका लेफ्ट चाइल्ड भरा, फिर इसका राइट चाइल्ड भरो आप 8, पहले इसका लेफ्ट चाइल्ड भरो, दैट इज़ 12 इधर जाएगा। ठीक है, अगर छोड़ना ही है तो इस साइड छोड़ो, राइट साइड छोड़ो। ठीक है, क्योंकि हम इसको एरे में एज ए लेवल भरते हैं। जब हम इसको एरे में डालेंगे इट विल बी लाइक दिस, पहले 20 जाएगा पहला एलिमेंट, फिर ये लेवल हम फिल करेंगे, यहाँ पे 11 करेंगे फिर क्या होगा 15, फिर आपका 10, फिर आपका, अब ये वाली लेवल कर रहा हूँ मैं, फिर 8, समझ में आ रहा है, 10 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या है 12। लेकिन अगर आपने ऐसा किया ना तो एरे में प्रॉब्लम हो जाएगी ना हमें। देखिए एरे में एम्प्टी स्पेस आ जाएंगी बीच में। पहले आपने 20 भरा क्योंकि लेवल के हिसाब से भर रहे हैं ना हम, उसके बाद आप ये लेवल करो, दैट इज़ 11 एंड 15। उसके बाद आप ये लेवल करो, फिर क्या है 10, फिर है 8, फिर एक खाली जगह रखनी पड़ेगी ना इसकी, उसके बाद 12। तो ये गड़बड़ हो गया ना, बीच में खाली जगह आ गया, तो एरे की स्पेसेस ख़राब हो जाएंगी ना अगर हम ऐसा करते जाएंगे आगे। और अगर हम लेफ़्ट साइड छोड़ेंगे और राइट साइड भरते जाएंगे तो उसमें एरे के अंदर स्पेसेस आएंगे, क्योंकि एरे के अंदर हम भरते हैं यूजिंग द लेवल्स। ठीक हो गया? तो इसलिए हमें अलाउड नहीं है कंप्लीट बाइनरी ट्री में लेफ्ट साइड छोड़ना। वी कैन स्किप फ्रॉम द राइट साइड बट नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्योंकि अगर राइट साइड छोड़ा कोई मसला नहीं है, वो उसके बाद तो फ्री स्पेस है ही हमारे पास। लास्ट में एलिमेंट यहाँ तक थे, 12 आ गया ना मुझे, उसके बाद फ्री स्पेस है ही है एरे की, जितनी अगर 100 के एलिमेंट्स के एरे हैं तो 12 तक मुझे आ गया सारा, यहाँ तक कोई फ्री स्पेस नहीं आई। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, यस सर। ठीक है, सो जो हीप आपका है, अगर आपको हीप बनाना है तो पहला वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। यानी कि जब आप भर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने भरा कोई डेटा 1 2, फिर लेफ्ट चाइल्ड भरो पहले, है ना, फिर राइट चाइल्ड भरो 3, फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे इसका राइट चाइल्ड भरा 5, इसका ये भरा 6, इसका ये भरा 7, फिर इसका राइट चाइल्ड भरा 8, तो गड़बड़ हो गई ना गड़बड़। यस सर, एम्प्टी स्पेसेस आएंगे लेफ्ट साइड से। यहाँ पे भरा मैंने फॉर एग्जांपल 9, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको एरे जब भरोगे पहले 1 भरोगे, फिर क्या होगा 2, फिर 3, फिर ये जो वाला है यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो इसके लिए एम्प्टी स्पेस आ जाएगी एरे में, फिर 5, फिर आपका 6 एंड 7, फिर जो आपको ये वाला बंदा था इसकी 2 जगहें जो वो खाली है ना, तो उनकी जगह 2 एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगी, फिर इसकी ये वाली एम्प्टी स्पेस आ जाएगी, फिर आपका 8 आ जाएगा, फिर इसकी 2 एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगी, है ना, फिर एक और 2 एम्प्टी स्पेस आ जाएंगी, फिर 7 का लेफ्ट चाइल्ड का एम्प्टी स्पेस आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 9 होगा। सो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, आपको एरे के हिसाब से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे इसको। सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बट देयर विल बी लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ स्पेस।
और फिर हमें जब इसमें सॉर्टिंग करनी होगी, सर्चिंग करनी होगी, तो वो तो ज़्यादा ही फिर कॉम्प्लिकेटेड बनेगा और वर्स्ट हमें एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी. So better is we have a first thing we need to have is what? Complete binary tree. Complete binary tree में क्या करेंगे हम? अगर यहाँ से 1 है, फिर सेकंड पहले लेफ्ट चाइल्ड भरो, फिर राइट चाइल्ड भरो, ठीक है. पहले इसका लेफ्ट चाइल्ड भरो, ठीक है, फिर इसका राइट चाइल्ड भरो पहले, उसके बाद इसके पास जाओ, इसका लेफ्ट करो, राइट मत करो इसका, है ना. समझ में आ रहा है? एंड सो ऑन. फिर Yes, इसका sir. इसका भरो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8. अगर आपको स्किप करनी, अब नहीं करने और नहीं भरने हैं, तो ये राइट वाले स्किप करो यहाँ से. अगर कोई और नोड आता है, भरो पहले यहाँ पे. लेकिन ये हो गया पहली कंडीशन, टू हैव अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. फॉर अ हीप we need to have firstly the complete binary tree, but second thing we need to have is that the parent should be either greater than its kids, okay, children, or parent should be less than or equal to its kids, right? ठीक है, मीन हीप में बात समझ आ रही है? जैसे ये कौन है? Yes, ये sir. मीन हीप है कि मैक्स हीप है? ये मीन हीप है. देखो 1 छोटा है 2 एंड 3 से, इसके अपने जो चिल्ड्रन है, इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड. 2 छोटा है 4 एंड 5 से, 3 छोटा है 6 एंड ये 7 से, है ना. 4 छोटा है 8 से, एंड सो ऑन. सो इट्स एंड इट्स कंप्लीट बाइनरी ट्री. इट इज़ कंप्लीट बाइनरी ट्री, है ना. ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है Yes, कि sir. नहीं है? हाँ है. और क्या इसके जो पेरेंट हैं वो क्या है? छोटे हैं. सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से छोटे हैं. So when the parents are lesser than the or equal to their kids, it is what? It is a min heap. समझ में आई बात? हाँ जी. Yes, sir. हाँ ना सर, ये सर जब पेरेंट छोटे होंगे वो मिन ट्री है, जब बड़ा होगा तो सब मैक्स ट्री. And it has first condition is it should be what? It should be the complete binary tree. बाइनरी. अब जब कंप्लीट ट्री बनाएंगे ना, जैसे हमने अभी बनाया था, जैसे मैंने रखा था यहाँ पे 20, पता क्या था मैं दिन 11 है, 11 15 10, ईगो 11, ईगो 15, यस. इतन क्या ओस 10, इतन ओस शायद 8, तो इतन थोड़ा 12, ये गो स्किप, ये हुजु स्किप है, ये चुना कहीं मा. No, So sir. this is at 0 level, this is 1 level, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, right? लेकिन array में how will be in the array? Can you tell me how will this will be in array? It will be, sir, 20. 20, 11, It will be 20, 11, 11, 15, 15, 10, 10, 8 and 8. 12. 12. अब आपको बताएगा कोई, बताओ मुझे किसी भी चीज़, किसी भी नोड का मैं उठा के बताऊंगा कि मुझे इसका आप लेफ्ट चाइल्ड बताओ, इसका राइट चाइल्ड बताओ. फॉर एग्जांपल ये 20 था ना, ये 0 पे है ना, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे. मैं कोई भी नोड उठाऊंगा, जैसे 11 उठाऊंगा मैं मुझे बताना 11 का लेफ्ट नोड कौन है? वो ना 10. मगर ये जो है ना, ये लॉजिकली है ना, ये मत असल में मेमोरी में स्टोर ऐसे हैं. मेमोरी में स्टोर ऐसे एरे की तरह है. दिस इज द ट्री जो आपका रिप्रेजेंटेशन है ना, दिस इज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज व्हाट Yes. actually in the memory it is not like this. Actually it's like an array like this जो यहाँ पर है, ठीक है ना. सो मैं 20 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 11 है, और 20 का राइट चाइल्ड क्या है? 15. तो हाउ विल वी कैलकुलेट दिस लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड? इज वी विल से जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके लिए सीधी फॉर्मूला निकलेगी. जो लेफ्ट चाइल्ड है क्या है? Left child. दैट इज 2 इंटू आई प्लस 1. आई इज जिस नोड की आप बात कर रहे हो कि उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है, ठीक है. इसी तरीके से अगर आपको राइट चाइल्ड निकालना है, क्या निकालना है? Right child. दैट विल बी 2 इंटू आई प्लस 2. 2 इंटू आई प्लस 2. देखिए फ़र्क कीजिए. आपको 15 का लेफ्ट, मैं कहता हूँ मुझे 15 का बताओ जी, 15 का लेफ्ट नोड कौन है? सॉरी कमांड जी. मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ आप 15 जो है ना, इसका लेफ्ट नोड कौन है? मुझे पता है 15 का लेफ्ट 12 है ना. 15 का लेफ्ट कौन Yes है? sir. ये है 12. मगर निकलेगा कैसे? हम Formula कहेंगे से. हम कहेंगे सीधे 15 जो है ना, उसका आई कितना है? 2 2 to the 4 plus 5. हाँ सर. है ना.
That is 2 into 2 plus 1. That is 2 times 2 is 4. 4 plus 1 is 5. तो हमें निकलेगा सीधे इसका लेफ्ट चाइल्ड 12 है. राइट चाइल्ड 15 को है ही नहीं फिलहाल. ठीक है, मैं 11 का राइट चाइल्ड निकालना चाहता हूँ. मैं 11 का राइट चाइल्ड निकालना चाहता हूँ. What will be that? 2 into I plus 2. What is the I value of 11? That is 11. 1. So 2 into 1 is 2. 2 plus 2 is 4. So जो 4 पे बंदा है ना, ये 8 बैठा है, ये असल में इसका राइट चाइल्ड है. सो वी कैन अंडरस्टैंड, हमें एरे में बैठा है, हमें पता है कौन किसका लेफ्ट चाइल्ड है. वी हैव दीज टू फॉर्मूलाज ओनली, राइट. हमें टेंशन लेने की ज़रूरत, हम कहेंगे ना ये मत घूम गया कि हमें पेरेंट कौन था और लेफ्ट कौन था, राइट कौन था, मत भूल गए हम. सो वी हैव फॉर्मूला, वी नो कि 11 का राइट 8 है, 11 का लेफ्ट कौन है, 11 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 10. 2 into 1 plus 1, that is 10, right? That is 3. Right, sir. That is 2 into 1 is 2 plus 1 is 3. जो 3 इंडेक्स वाला है वही इसका लेफ्ट चाइल्ड है. सो वी नो दैट. तो इसलिए एरे के अंदर हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज है, उससे हमें पता चलेगा कि कौन चाइल्ड कहाँ पर है. Yes. और अगर मुझे पेरेंट निकालना हो, क्या निकालना हो, अच्छा मुझे Parent. बताओ पेरेंट कौन सा है. अगर किसी का पेरेंट मुझे निकालना है, सो जैसे मुझे 3 का पेरेंट निकालना है, इट इज़ सिंपल. फॉर्मूला इज I minus 1 divided by 2. अब I का मुझे 10 का पेरेंट दिखाना है. 10 का पेरेंट कौन है, सो दिस इज 3. 3 minus 1 is 2. 2 by 2 is 1. सो 11 इसका पेरेंट है. ये देखो 11 इसका पेरेंट है ना. 8 का भी 11 निकलना चाहिए. दैट इज 4 minus 1 divided by 2. व्हाट इज दैट? 3/2. दैट इज 3 by 2 इज अगेन 1 है ना. जब 3 by 2 हम करेंगे, 2 times 1 is 2. इंटीजर डिवीजन है ना. Yes, sir. So coefficient is 1. So 1, which is 1, that is 11, is again the parent of 8 as well as 10. ठीक है. In fact, we take what's called a floor of this operation. या हम इंटीजर डिवीजन करेंगे प्रोग्राम में, तो उसमें इंटीजर डिवीजन करेंगे तो पॉइंट तो वो फेंकेगा ही. It will throw the points, right? When you divide 3 by 2, it will answer will be 1 in integer division. जब हमने इंट्स रखे होंगे ना, हमने फ्लोट नहीं रखे होंगे. ठीक है ना. तो हो गया काम हमारा. पास में जा रही. Yes, sir. अब मसला है कि हम पहुंच रहे हैं ना आगे, जब से हम कह रहे हैं कि हीप सॉर्ट हमें करना है. पहले हीप तो समझ आ गया हमें, शायद हीप समझ आ गया ना. Yes, sir. पहले हम क्या करेंगे काम, हम हीप में इंसर्ट करेंगे और डिलीट करेंगे. देखेंगे इसको इंसर्ट कैसे करेंगे हम. हीप में इंसर्ट, कैसे करें? लेकिन आप हीप को इंसर्ट करो चाहे डिलीट करो, लेकिन वो हमेशा हीप रहना चाहिए. उसका मतलब क्या हीप रहना चाहिए. नंबर 1 कंडीशन, इट शुड बी द कंप्लीट बाइनरी ट्री, देयर इज नो लेट ऑफ. नंबर 2, जो पेरेंट है इट शुड बी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू देन देयर चिल्ड्रन. Children. ये दो कंडीशंस हमेशा यू शुड मीट. these two conditions should meet, right? If you want to insert or you want to delete. In fact, जो हम delete करेंगे उसी की थोड़ी सी ट्रिक हम करेंगे और उसी से हमें निकलेगा सॉर्टिंग. सिंपल. आप खुद ही बताओगे भाई ये तो खुद सॉर्ट हो गया. अच्छा, अब मुझे इंसर्ट करना है. क्या करना है? आई वॉन्ट टू इंसर्ट इन टू हीप सम नोड. ठीक है. फर्स्ट के मुझे अभी जो ये यहाँ पे नोड था, ये ना अभी हमने ट्री बनाया 20, 11, 15 वाला. ये 20 था, ये 11 है, ये 15 है. यहाँ पे कितना था? 10, 10, 8. ये 10 है. ये आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है. ये 12 है. ठीक है. एरे के अंदर कैसे होगा ये? 20, 11, 15, 10, हाँ जी 10 8. लेवल के हिसाब से भर रहे हैं ना. ये आ गया आपको समझ. अच्छा, कॉमन सेंस है. जब आपको इंसर्ट करना है, क्या करना है? Insert. फॉर एग्जाम्पल आप इंसर्ट करना चाहते हो 25. फर्ज कीजिए आप इंसर्ट क्या करना चाहते हो? 25. अब चूंकि ये कौन सी मीन हीप है या ये मैक्स हीप है, मुझे बताओ. सर ये मैक्स हीप. दिस इज मैक्स हीप. तो मैक्स हीप क्या बोलता है? जो टॉप एलिमेंट है वो सबसे बड़ा होगा, है ना. ये जो ये 11 वाला होगा ये अपने बच्चों से सबसे बड़ा होगा. ये 15 जो है अपने बच्चों से सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सबका बाप तो ये है ना 20. रूट नोड. रूट नोड इज द ग्रैंड पेरेंट ऑफ ऑल द गाइज, राइट. Yes, तो sir. अगर इसको मैक्स हीप रहना है, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी
the biggest element in the tree. Does it make sense? लेकिन अब कौन आया? 25. 25 तो 20 से भी बड़ा है ना, यस सर। तो कहाँ लगाओगे इसको बताओ? सर उधर ही. कहाँ? 20 की जगह? Yes, sir. 20 की जगह लगाओगे बोलो, मगर 20 कहाँ जाएगा फिर? 20 की आपने सर, 25 लगाया 20 की जगह पर, 20 कहाँ जाएगा? सर 20 जाएगा 15 की जगह. क्यों? सर तभी तो बनेगा ना ये. 11 की जगह Max क्यों नहीं heap गया? 20 11 की जगह क्यों नहीं गया, बताओ मुझे। क्योंकि सर जो राइट साइड है ना, इसको एक नोड अभी बाकी है, सो वहां पे है स्पेस। नहीं 25 पहले मुझे बताओ ना, 25 कहाँ जाना चाहिए? सर ये जाना 25 चाहिए मतलब 20 के ऊपर, कॉन्सेप्चुअली कहाँ जाना चाहिए 25? 20 के यहाँ ऊपर पे सर। जाना चाहिए ना, हम्म। मगर सर. 20 तो शफल करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं हमें। यस Yes, sir. वी नीड टू गेट द 20 समवेयर ना, यस सर। तो कहाँ ले जाएंगे इसको? राइट शिफ्ट करेंगे सर। तो अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो 15 कहाँ जाएगा फिर? 15 आएगा फिर सर नीचे, 20 के नीचे। ठीक है ना, यस सर। तो वो इसके नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे 25 लगा दूंगा, कितना? 25। सो शॉर्टकट में हम अगर हम करेंगे काम, क्योंकि जो हमारा एरे है उसमें खाली जगह बाहर है यहाँ पे, है ना, तो हम जो नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा हमारा है वो हम यहाँ पे डालते हैं, एरे के लास्ट में, एरे के लास्ट में डाला आपने, डाला आपने 25 कहाँ पे डाला? अरे के लास्ट। क्योंकि ये तो अभी 25 आ गया ना, कभी मे बी इसका 17 आता है, ये 13 आता है, ये 7 आता है, मत पता है हमें, ये तो हम आंख से देख रहे हैं कि 25 है सबसे बड़ा है, हमें कहाँ पता है प्रोग्राम को कि ये बड़ा था कि कौन है, इसको तो कम काम करना पड़ेगा ना, Yes, sir. उसको मत पता है ये डायरेक्ट देखने से कि सारी खुद बोर्ड एंड सो ऑन। ये अच्छा पहली बार जो बड़ा है ठीक है, लेकिन मे बी ये 17 था तो, या 20 था, या 13 था, ये 7 था, तो किधर को जाता, है ना, सीधी सी बात है। फ़र्ज़ कीजिए 18 था, 18 अब 15 से बड़ा है और 11 से भी बड़ा है, तो ये तो गड़बड़ होगी ना फिर, ठीक है। तो सर या इसका मतलब है जो सर वहां से हमें डेटा आइटम इंसर्ट के लिए मिलेगा वो जाएगा हमेशा लीफ नोड पे, फिर वहां से शफल करना. एग्जैक्टली, इट हैज़ टू गो टू द लीफ नोड, इट हैज़ टू गो टू द वायर। लीफ नोड। अब गया ये लीफ नोड में, दिस इज़ 25 हियर, ठीक है, हमने नया नोड जो है वो लगाया यहाँ पे 25, बट इज दिस अ मैक्स हीप नाउ? नो इट्स नॉट। नो, इट्स नॉट अ मैक्स हीप एट ऑल। क्यों? बिकॉज 25 इज ग्रेटर Is देन great. 15, सो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू स्वैप। सो Swap. हम यहाँ पर अभी हैं, है ना, से फॉर एग्जाम्पल हमारा आई का वैल्यू ये है ना अभी जहाँ पे मैं डाल रहा था, क्योंकि जब मैंने हीप बनाया होगा मेरा आई पहुँचा होगा ना यहाँ पे, अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। या फ़र्ज़ कीजिए मुझे इसमें जो मैंने एलिमेंट भरे हैं एन एलिमेंट्स लिमिट या कुछ एन था, यानी कि अब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो n+1 पे जाएगा, यानी कि आई का वैल्यू n+1 होगा, वट एवर इट इज़। अब आई का वैल्यू जो है वो उस जगह पे है जहाँ पे मैंने नया एलिमेंट डाला, डाल दिया. ठीक है। अच्छा। तो अब इसको कंपेयर करना चाहिए अपने बाप से, किसके, क्या 12 से कंपेयर करेगा ये? नो सर. एम क्या 12 से ये गैसे आसुन, ये गैसे आसुन लकुट पन्निस पेरेंट, या आप छोटा होना चाहिए अपने पेरेंट के साथ, है ना, पेरेंट तो 15 है वो यहाँ पे बैठा है ना, तो इसको कंपेयर करना चाहिए आप किसके साथ? 15 के साथ। अगर प्रोग्राम के हिसाब से हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इफ इसका नाम फॉर एग्जांपल ए आर था एरे का, इफ ए आर ऑफ कौन, ए आर ऑफ आई, ए आर ऑफ आई कौन है? जो नया सर, एलिमेंट जब है, हमें कब स्वैप element- करना, मुझे बता कब swap? अगर ये 25 नहीं होता है 5 होता तो क्या मैं स्वैप करता?
नो ना। सर। ये तो मैक्स हीप था, तो परफेक्ट था फिर, है ना? यस सर। अगर ये 5 होता, 5 जो है ना 15 उसके पेरेंट्स से छोटा है, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो प्रॉब्लम कब है? जब एयर ऑफ आई क्या होगा? छोटा, सॉरी बड़ा। बड़ा। किससे? पेरेंट से। पेरेंट कैसे निकलेगा? ए और आई माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दैट इज द पेरेंट, राइट? यस सर। Parent is I minus 1 divided by 2. यस सर। So if air of I is greater than air of I minus 1 by 2, then what should I do? देन यू शुड स्वैप। You should swap. Swap तो पता है हमें क्या कैसे करते हैं, है ना? कैसे करते हैं हम? फिर टेम्प लेंगे, हम्म? या तो टेम्प लेंगे वेरिएबल। टेम्प ही लेना पड़ेगा। टेम्प में डालेंगे क्या? एयर ऑफ आई में टेम्प डाला हमने। एयर ऑफ आई में आई माइनस 2 डिवाइड बाई 2 डाला। क्या? सर टेम्प में डालेंगे फिलहाल, एयर ऑफ ए पेरेंट डालेंगे उसमें। जरूरी नहीं है, एयर ऑफ आई भी डाल सकते हैं, क्या मसला है? ठीक। है ना? फिर डालेंगे एयर ऑफ आई में पेरेंट। एयर ऑफ आई में क्या डालेंगे? पेरेंट। एयर ऑफ माइनस 1 बाई 2 पेरेंट डालेंगे ना वही। एयर ऑफ आई माइनस 1 by 2, दैट इज पेरेंट डाला। ये चाइल्ड था, चाइल्ड में मैंने डाला पेरेंट। पहले मैंने जो चाइल्ड है वो सेव किया, लेकिन उस सूरत में अगर ये बड़ा है अपने बाप से, अपने पेरेंट से, यस सर। ठीक है, उसी सूरत में इफ चलेगी ना। टैप में डाला एयर ऑफ आई, एयर ऑफ आई में डाला एयर ऑफ आई माइनस 2, इनकी मैंने चाइल्ड में डाला पेरेंट, लेकिन वो तो सेव है ना, वो इसमें डाला पेरेंट। इसमें पेरेंट जो था 15 वो डाला हमने, वो डाला है इसमें। ये गो ओवरराइट हो ना। सो ये यहाँ पे ओवरराइट हो गया, लेकिन ये 25 मैंने सेव किया है ना किसी में, यस सर। टैप में। तो टेम्प डालेंगे हम वहाँ पे पेरेंट में। सो पेरेंट के अंदर आप जो पेरेंट है एयर ऑफ आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, उसमें डालेंगे एयर टेम्प, सॉरी उसमें डालेंगे टैप। यस सर। क्या हमारा काम खत्म हो गया? तो इसमें डल गया 25। अब यहाँ पे इसमें क्या डल गया? अब 25 क्या हमारा ये हो गया क्या? इज दिस अ हीप नाउ? ना, अभी भी हीप नहीं है। अब क्या करना चाहिए काम? अभी भी सेम प्रोसीजर, अभी और पेरेंट के पास जाना चाहिए ना। पेरेंट के साथ कंपेयर। अभी मेरा आई कहाँ पर है? यहाँ पर। लेकिन अब किसकी बात हो रही है? 25 की। इस 20, पहले तो 25 यहाँ पे था, उसकी बात हो रही थी, तो आई वहाँ था। लेकिन अब आई कहाँ पे होना चाहिए था? 25 पे। 25 कौन था? वो इस आई का बाप था। सो आप आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस नहीं करना है, आपको आई को लेना है पेरेंट के पास। सो व्हाट विल बी आई इक्वल टू देन? आई माइनस 1 बाई 2। एग्जैक्टली। यानी कि मैं कह रहा हूँ तू आई अब पेरेंट के पास जा। अब आई बन गया इसके पास, फिर से ये चलेगी। या ऐसा है किसी लूप में रखा होगा ना हमने, जब तक कि 0 ना हो जाए, जब तक कुछ है नहीं वहाँ पे ना। अगर 0 से लेस देन हो गया फिर तो एरे के बाहर निकल गए हम। तेलुगु इतना इसी सुधी कथा ये आई 0 छु ना, देयर आई शुड स्टॉप। कैसे दैट मीन्स दैट दिस इज इसके बाद तो कोई पेरेंट है नहीं इसका। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये लूप के अंदर चलेगा वाइल आई इज ग्रेटर देन 0। तब तक चल, ये तब तक कर जब तक कि वाइल आई इज ग्रेटर देन 0। जनाब आई का वैल्यू कितना है अब? आई का वैल्यू है 0 1 2, है ना? 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 2 पे है ना अब आई? यस सर। तो इज आई ग्रेटर देन 0? यस। देन गो बैक, इट विल गो बैक हियर, राइट? It is again check if air of I, who is air of I? That is 25. Is it greater than its parent? Who is its parent? I minus 1 divided by 2. 2 minus 1, that is 1 divided by 2, that is 0. 1 divided by 2. 2 times 0 is 0, remainder 1. So answer is 0. So who is parent of the 25? I2 is 0. Who is at the 0? Who is at 0? 20. So this is the parent, right? हाँ जी। यस सर। तो क्या होगा? क्या बड़ा है इससे? यहाँ 25 आ गया। अब क्या 25 बड़ा है 20 से? यस सर। हाँ, असल में काम एरे पे हो रहा है ना, ये लॉजिकली हम कर रहे हैं।
ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये लॉजिकली कर रहे हैं ना. इंटरनली इट इज हैपनिंग इन एरे लाइक दिस. क्या 25 बड़ा है 20 से? हाँ है. तो करो फिर से ये स्वापिंग, यानी कि 25 डालो टेम्प में, 25 की जगह 20 जाएगा. ठीक है, फिर टेम्प 25 जाएगा. यहाँ पे आई क्या बनेगा? आई बनेगा 0 अभी. आई इज इक्वल आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आई गो टू द पेरेंट. आई बनेगा 0. जब आई 0 बन गया, आगे चलने की जरूरत है? नहीं. 25 आ गया, हमें 20 आ गया. यहाँ पे आगे चलने की जरूरत है बिकॉज इज रूट. इसके बाद तो कुछ है नहीं हमारे पास, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. नहीं है. सो 25 हैज कम टू द टॉप, राइट? So Yes, sir. it will not allow you to go back because I is not greater than 0. I is equal to 0 right now. So it will get you out of the loop. We are done. Yes, sir. बस में आई? Is this Yes, sir. now? Is this after insertion of 25? Is this a max heap? Yes, sir. Yes, it is. Yes, it is. ठीक है. Yes, sir. Yes. इसमें जर्नी कहाँ से आ गई? लास्ट पे हमने ऐड किया. ठीक है, एंड इट वेंट अप. इट Yes, वेंट. sir. Up. सो आपको जिधर भी आपका नोड है वो लास्ट में ऐड होगा. फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे एरे हैं 1, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये फर्ज कीजिए 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना? अब नेक्स्ट नोड डालना है कहाँ पे? अब मुझे ऐड करना है 11. कहाँ पे ऐड करूँगा? Leaf Left. left पे sir. इस Three. left 3 के बाद. 3 के लेफ्ट में, यहाँ पे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे एरे में मेरे पास कैसे होगी? ऐसे 10, 10, 5, 5, 6, 6, देन 2, 4, 3, 5, 2, 4, 5. 11. और लास्ट नोड जो होगा वो 11 अब यहाँ पे आ जाएगा. हाँ, ये कंपेयर किसके साथ होगा? पेरेंट के साथ. Period. क्योंकि पेरेंट इससे छोटा है तो 11 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा. ठीक है. अब 11 Yes, sir. किसके साथ कंपेयर होगा? 5 के साथ, Parent. 5 के है साथ. ना? सो Yes, sir. 11 यहाँ पे जाएगा, 5 यहाँ पे जाएगा. अब ये 11 किसके साथ कंपेयर होगा? पेरेंट के साथ. 10. 11 यहाँ जाएगा, 10 यहाँ जाएगा. Yes, ठीक है? sir. एंड Yes, वी आर sir. डन बिकॉज आई हैज हिट 0, 0. है ना? Yes, sir. डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? Totally. हाँ जी भाई साहब, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी हैव टू डिलीट इफ यू वांट टू, बिकॉज डिलीशन इज जिसमें हमारे पास छुपा है हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, हीप सॉर्ट. दैट इज इन द डिलीशन. आई वांट टू डिलीट इन अ हीप. आई वांट टू डिलीट इन अ, पहली बात जो Okay. डिलीट आपको हीप में करना है ना, यू आर अलाउड टू डिलीट ओनली द टॉप, दैट इज रूट, which is the biggest element if it is a max heap, or smallest element if it is a min heap, है ना? अगर min heap है तो सबसे छोटा वही टॉप वाला बंदा होगा. अगर आपका ये है, जैसे अभी हमारे पास था 20, यहाँ पे क्या था 11 शायद, 15, फिर यहाँ पे 10, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे था 12. ठीक है, या फर्ज कीजिए यहाँ पर मेरे पास है एक और नोड दैट इज 14. ठीक है, इसमें कौन sir. डिलीट होगा? क्या सर? डिलीट अगर करना है तो कौन डिलीट होगा? टॉप सर. ओनली 20. यू कैन ओनली डिलीट द रूट, यू कैन ओनली डिलीट द. रूट. अब अगर 20 आप डिलीट करोगे, हम्म. अगर आप 20 डिलीट Delete करोगे, इसकी जगह कौन लेना चाहिए? 50. 15 लेना चाहिए, है ना? एंड सो ऑन. बट हमारा तरीका जो है, हम क्या कहते हैं कि पहला काम कि डिलीट ओनली रूट एलिमेंट, नंबर 1. ठीक है, तो डिलीट कौन होगा हमारे पास? हम क्या करेंगे? डिलीट 20 करेंगे ना, 20 डिलीट. पहले इसको एरे Yes, में sir. रखेंगे हम. इट विल बी 20 इज हियर, देन 11, देन 15, देन 10, then 8, then 12, and then 14. इस तरह से हमारे पास है. जो 20 की जगह डिलीट करेगा ना, 20 की जगह जो रिप्लेस करेगा, ठीक है, we will not replace the next element, next right child or something else. Okay, what we do is we chose the last element. We chose what? Last element. That is this 14 Hmm. to go in place of 20. To go Right. in place of
20. 20. So in step 1 we will delete 20 by how? By placing this 14 onto the 20. Hmm. But who are we deleting? Parent node. We are deleting the biggest element. Hmm. ठीक है? Yes sir. सो यानी कि फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, मैक्सिम बनाएंगे, लेकिन बट व्हाट वी आर डिलीटिंग द मैक्सिमम एलिमेंट, राइट? Hmm. So technically what we are doing is here is that we remove this 20 and we put a 14 there, okay? 11, Yes. 15, 10, 8 and 12. This it happens like this now, right? And this element is Yes. deleted. Okay? Hmm. Hmm. Okay, so what will happen to this tree? It will be 14 here, then 11 here, then 15 here, then 10 here, then 8 here, then 12 here, and then 14. 14 is not this, that's gone, that's not placed here, right? Yes, sir. Now is this a max heap? No, sir. It's not a max No heap. sir. It's Now we have to heapify. We call this actually heapify, like we created the heap here, like we created this heap here. After insertion it was not heap, and we did the heapify. What we did here was the heapify. We call it what? Keep you fine. Heapify means making it heap yes sir. by shifting above. And one more thing here is, when we shift above, how many times we can shift, because it's a logarithmic, right? Because it's tree. So log of n times we will swap. The complexity of insertion is log of n in a worst case. वर्स्ट केस हो गया कि जब ये जो 25 था सबसे बड़ा था, इससे भी बड़ा था, इससे भी बड़ा था, है ना? अगर आपने पहले ही इंसर्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5, जब आपने यहाँ पे 5 डाला, उसको स्वैप करने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट्स द बेस्ट केस. में एक ही टर्न लगेगी कि 5 यहाँ पे लास्ट में डालो, है ना? लास्ट में 5 डालो. लेकिन जब आपने 25 डाला वहाँ पे, उसने वो इससे भी बड़ा हो गया, फिर इससे भी बड़ा हो गया, तो इसलिए हमें उसको 2 बारी करना पड़ा यहाँ पे. जितनी हाइट आपकी ट्री की है, ठीक है, उसका लॉग n. ठीक है? Yes sir. अब हम डिलीट करना चाह रहे थे, तो डिलीट में मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो आप रिप्लेस करो 20 को. हो गया ना ऐसा? लेकिन अब ये हीप नहीं रहा. अभी हीप नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि सर एक मिसिंग है इसमें, लास्ट लीफ नोड. नहीं, वो क्या करेगा? पर यहाँ ये तो कंप्लीट बाय एंट्री है, ये तो फिर भी कंप्लीट बाय एंट्री है ना, क्योंकि मैं लास्ट यहाँ से काटा ना मैंने, इसीलिए तो मैंने यहाँ से काटा. क्योंकि अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो फिर तो वो कंप्लीट बाय एंट्री नहीं रहेगा, तो हमें प्रॉब्लम करेगा. इसलिए हमने लास्ट नोड ही काटा, वो डाला इसकी जगह. मखलो ना हो ये, इसलिए मैक्स हीप नहीं है क्योंकि 14 इज नॉट ग्रेटर देन 15. द पेरेंट हैज टू बी ग्रेटर देन if it is Yes, max sir. heap. So 14 is not is greater than 11. ये हमें लग रहा है, लेकिन प्रोग्राम को तो चेक करना पड़ेगा ना. So it Yes, has to sir. check both of these guys. फिलहाल 14 11 से बड़ा है, तो यहाँ से कोई परेशानी नहीं है. नहीं. मगर इस साइड परेशानी है. 14 इज नॉट ग्रेटर देन 15. तो इसमें क्या करोगे आप? फिर से चेक करोगे. इफ जो आई आपका है, is it greater than 15, is it less than 15? yes, then swap. then what? Swap. जैसे ऊपर किया हमने swap, तो हम इसको swap करेंगे यहाँ पे. तो क्या बनेगा यहाँ पे? ये जो 14 है ये इसकी जगह आ जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा. पहले टेम्प वगैरह हो जाएगा ना, तो swap हो जाएगा. ठीक है? अब फिर से चेक होगा, क्या 14 जो है बड़ा है 12 से? हाँ है, तो हो गया है, तो बन गया हीप. बन गया ना? तो हमें 2 सूरतों में रुकना है. एक सूरत ये है कि फ़र्ज़ कीजिए ये इससे बड़ा नहीं था, यहाँ पे 20 था. अब कहाँ पे जाता है? इसको तो और जाना पड़ता ना. क्या 14 20 से छोटा बड़ा है? नहीं है. तो 20 ऊपर होना चाहिए. इनफैक्ट 20 नहीं है, कुछ मान लीजिए ये 14.5 था. क्या था? 14.5. अब 14.5 यहाँ आता, 14 नीचे आ जाता है ना. Yes sir. Now should we again compare with somebody? No, we are on a leaf node. हमें कैसे पता चलेगा कि हम पहुंच गए लीफ नोड पे? हम log of n, जो मेरा n होगा, जो मेरी हाइट होगी, उसका log जो है, अगर हम वहाँ पहुंच गए, है ना, तो दैट मीन्स कि मैं लीफ नोड पे हूँ. अब मुझे आगे जाने की ज़रूरत
नहीं है। नहीं है, ठीक है ना, यस सर। समझ आ गया। हम्म। अब इसमें मैं अगर एक ट्रिक करूँगा, मुझे आप बताएं ऐसा कि जब मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, फिर मैं इसको हिपीफाई वगैरह करूँगा, वो मुझे पता है, वो मतलब 14 11 जो ये किस्सा है ना, इसको मैं हिपीफाई करूँगा ना। 15 की जगह यहाँ पे यहाँ यहाँ 20 आ गया, पहले 20 तो ख़त्म हो गया, उसके लिए 14 आ गया ना, फिर 14 की जगह कौन लेगा, ये 15 है ना, और 14 आएगा यहाँ पे, बन गया ना हिपीफाई। यस सर। फिर आप हिपीफाई करो क्या करो वो नहीं मसला है, लेकिन आपने क्या किया, जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो रिमूव किया आपने, है ना। अब हिपीफाई करके क्या आया कि सबसे बड़ा अब जो एलिमेंट है, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा था इसमें एरे में, वो अब टॉप पे आया। यस सर। अगर आप एक काम करोगे कि आप जो ये आपने ये काटा ना लास्ट एलिमेंट को ना ख़त्म, ये एलिमेंट को ना ख़त्म, हम्म। इसकी जगह वो डालोगे जो आपने डिलीट किया, ठीक है। हम्म। हालांकि आपके एरे यहाँ तक है, नॉट अ प्रॉब्लम, अब क्योंकि आपने इस पर काम किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, लेकिन अब आप ऐड करोगे आप कि जो आपने डिलीट किया प्रोसीजर वही रखोगे, लेकिन वो आप लास्ट में ऐड करोगे, एरे की लास्ट में, ऐड करो। ठीक है। इसके बाद फिर से डिलीट करो भाई, इसको डिलीट करो, कौन आएगा सबसे इसमें डिलीट करके, क्या आएगा, आप किसको डिलीट कर सकते हैं, 12 डिलीट किसको कर सकते हैं, टॉप को, रूट को। लेकिन 12 को लाएंगे टॉप की तरफ। पहले 15 को डिलीट करेंगे ना, यस सर। और जो 12 आपका है, जो लास्ट एलिमेंट है, उसको लाएंगे इसकी तरफ, लेकिन ये 15 में डाल रहा हूँ इधर, और 12 कहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। यस सर। अब इसको देखना पड़ेगा, हिपीफाई करना पड़ेगा ना कहीं ये, क्योंकि 12 आ गया ना वो ऊपर, यस सर। अब 12 इधर आ गया, फिर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 14 है, फिर यहाँ पे कौन है, 10 है, फिर 8 है, फिर ये दो तो है ही नहीं, है ना, ये मुझे गई ना डिलीट। क्या 12 बड़ा है 11 से, हाँ है। क्या 12 बड़ा है 14 से, नहीं है, तो स्वाप करो, 14 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, जो 14 है वो 12 की जगह आ जाएगा हिपीफाई करके, और 12 यहाँ पे आ जाएगा, और अपना एरे ये रहेगी, और यहाँ से जो आपने दो एलिमेंट्स जो डिलीट किए थे वो हमने यहाँ पे डाले लास्ट में, ठीक है। अच्छा, अब फिर से डिलीट करो, यहाँ पे क्यों ये यहाँ पे कौन है, 14 है। 10। अब हाँ 14। अब सबसे बड़ा कौन है, 14। करो डिलीट इसको, वो किसी जगह डालोगे 8 की जगह, है ना। सो 14 15 20 ये होगी डिलीट, है ना, ये 3, ठीक है। यस सर। मोकलो ना 8 की जगह लगो ना इस 14, 8 का यानी ये 10 8 कत बाह तो दा, वो मैं बनो वन ट्री स्ट्रक्चर इत कन, यह 8 यह कह पत बाह पत 10, ये क्या चुना, क्या 8 बोर्ड कहस ना। करतन स्वाप, सो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा ना। क्या 8 बड़ा है 10 से, ना, करतन स्वाप को 10 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, तो हमारे पास बनेगा ऐसे एरे 11 10 12, है ना, है ना। फिर से यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, जब 11 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो 11 को अब इसने पहले लेफ्ट किया, फिर इसका लेफ्ट किया, फिर 11 यहाँ पे आ गया टॉप पे, इसमें से सबसे बड़ा जो था, लेकिन अब 11 12 के साथ हो जाएगा ना कंपेयर, तो 12 इधर आएगा, 11 यहाँ पे आएगा, सो हमारी ओवरऑल एरे बनेगी 12 10 11 एंड 8, है ना। और यहाँ से आपके जो आपने ये जो डिलीट किए थे 14 15 एंड 20, करो आप डिलीट, अब कौन डिलीट होगा, 12 किसकी जगह जाएगा, 8 की जगह, तो 8 यहाँ पे आएगा 10 11, और जो आपका ये 12 है ये आ गया यहाँ पे डिलीट वालों में से के साथ, है ना, आ गया ना। अच्छा। अब हमारे पास एरे हैं 8 10 एंड 11 वाली, क्या ये हीप है, नहीं है, इसको टीम से स्वाप गैस ना, खस 10 ह्योर 8 वैसे बोन, अब 10 11 के साथ होगा, तो 11 ऊपर जाएगा 10 नीचे जाएगा, सो हमारी एरे क्या बनेगी 11 8 10 बनेगी ना।
और यहाँ से आपका जो ये 12, 14, 15 एंड 30 जो है ये आपने किए डिलीट। अब कौन डिलीट होगा? 11, वो किसी जगह बैठेगा। 10, सो 10 यहाँ पे आ जाएगा और 11 इधर आ जाएगा। 11, 12, 14, 15 एंड 30 ये हमने किए डिलीट, है ना। और अच्छा, बचा यहाँ पे 10 और 8, हम्म, और 10 और 8 ठीक है, ये हीप है ना। हम्म, 10 इज ग्रेटर देन 8, इट्स ऑल राइट। अब नेक्स्ट कौन डिलीट होगा? 10 किसी जगह जाएगा, 8 की जगह। 8 इधर है, 10 यहाँ पर है ना। यस सर, आ गया ये 10। अच्छा अभी नहीं आया था ना 10, अब आ गया 10। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ये 11 था यहाँ पे, सॉरी नॉट 10। यहाँ पे 11 था हाँ, सर। अब 10 आ गया डिलीट वालों के साथ। 10, 12, 14, 15 एंड 30 और ये 8, ये लास्ट एलिमेंट जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ओवरऑल देखोगे आपकी एरे जो है ना वो सॉर्ट हो गई। 10, 12, 14, 15, अच्छा ठीक, हाँ सर। हो गई ना सॉर्ट, हम्म, ये सॉर्ट हो गई। क्योंकि क्या क्या हुआ था कि आपने पहले सबसे बड़ा एलिमेंट किया डिलीट, जो ना पहले था सबसे बड़ा एलिमेंट किया, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट किया, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट किया, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट कर रहे हो 11, उसके बाद नेक्स्ट 10, और वो लगा रहे हो ना यहाँ से आप। यस सर, सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं हीप सॉर्ट। ठीक है, यस सर, तो आप क्या कर रहे हो? पहले ही बना रहे हो, ठीक है। मैक्स ही बनाओ या मिन ही बनाओ। अगर मिन ही बनाओगे तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी या असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। अगर मैक्स हीप है तो हु इज़ दिस गाय? ही इज़ द बिगेस्ट एलिमेंट। जब आप उसको डिलीट कर रहे हो वो लगा रहे हो एरे के एंड पे। फिर जब आपको हीपिफाई कर रहे हो, हीपिफाई से क्या होगा कि जो ये ट्री बनेगा, नेक्स्ट ट्री बनेगा आपका, ये हीप इसमें ये सबसे बड़ा होगा। हीपिफाई वही करता है ना। यस सर, मैं तो ये उठा के फिर डिलीट करो, फिर डालो इसके आगे। फिर नेक्स्ट जो आपका आएगा इट विल बी द बिगेस्ट, नेक्स्ट बिगेस्ट, वो यहाँ पे डालोगे। फिर लास्ट वाला बचेगा यहाँ पे डालोगे। तो इन द मीन टाइम आपकी एरे जो है वो क्या हो जाएगी? सॉर्ट हो जाएगी। एंड दिस इज कॉल्ड एज एन हीप सॉर्ट। हाँ जी, समझ में आ गया कुछ? यस सर। मुझे तो लगता है आपको नींद आ गई यार। सर क्लास है कोई थोड़ा बहुत पहले करे मतलब टाइमिंग सर आज के कॉम्प्लेक्सिटी से लॉग इन हाँ कितनी होगी? लॉगिन होगी? सोचो मुझे इसके लगता है ऊपर। सर, मुझे लगता है सर यू थिंक अबाउट इट। 10 होगी सर। क्लास पहले नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली आई प्ले बैडमिंटन अराउंड 9-9:30 तक। सो 9:30 कर सकते हैं, फिर मैं थोड़ा सवेरा आया करूँगा। मगर बच्चे पे थोड़ा डिनर विनर करूँ। 10 बजे ठीक है। अभी क्या नींद आती है? थोड़ा जहांगीर थकान यूनिवर्सिटी सर 5 बजे निकलता है, फिर लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुंचता है क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है। हाँ, फिर थोड़ा पढ़ना भी होता है तो इसीलिए। अगर सुबह क्लास दोगे वो भी चलेगा। कितने बजे सर? सवेरे फिर तो फजर के बाद ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको जाना भी है ना। फिर आप लोग चूज़ करो, 7 बजे। मुझे बताओगे आप फिर। हाँ ठीक है सर। अच्छा, मुझे ये बताया आप कि आपको ये समझ आ गया? यस सर। थोड़ा सा लास्ट यूज तो लिखो ना, ये वो जो डिलीट करके मतलब टॉप वाला एलिमेंट फिर वहां पे जाएगा, उसको थोड़ा वो। कोई बात नहीं, इसको कल हम थोड़ा सा और रिविजन करेंगे। ठीक है आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बताएंगे कल, ठीक है ना। ठीक है सर। बाय दिस आई हैव रिकॉर्डेड, अपलोड इट ऑन द यूट्यूब। ठीक है, ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।